हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे साथ है सोनाली दत्ता। शी इज अ स्पीकर, ऑथर एंड कोच। शी इज अ सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर, लाइफ एंड पॉजिटिविटी साइकोलॉजी कोच। शी हैज वर्कड विथ मेनी एमएनसीज और अभी करंटली शी इज वर्किंग इन एलजीबीटी प्लस इंक्लूजन एट वर्क स्पेस ऑफ डीईआई, जिसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। वेलकम सोनाली। थैंक यू सो मच प्रीतिका फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रह Sonali, how are you doing, like, for real? के। I'm doing good. It's very interesting. Every 1 or 2 years, I'm changing my career, so I keep it entertaining for myself. Nice. अभी currently, what keeps you busy? So currently, I've entered this field for LGBT plus inclusion. It's a very big passionate project. हमेशा से मेरा एक aim रहा है कि whatever I work in should really have like some sort of a bigger impact than just monetary for my personal benefit. और ये एक ऐसा वर्क स्पेस है जहाँ पे आई पर्सनली कनेक्ट। और इन जनरल I've always liked working in companies जहाँ पे कल्चर काफी अच्छा हो, है ना। तो आप जाते हो वहीं पे काम करने, इट्स नॉट now the things have changed. It's not like you walk into a place and you only do your 9 to 5 or 10 to 6 and you get a money and you come back. आप जाते हो, you spend more than half of your life in a workspace with people. आप उनसे सीखते हो good and bad things, and it's a major part of your life. And we have heard a lot of things जहाँ पे politics हो रहा है या लोगों को अंडर किया जा रहा है, not for their own benefit but उनके अगेंस्ट जाके देयर आर पीपल आर डूइंग थिंग्स व्हिच इज वेरी अनफेयर। तो मुझे लगा कि कल्चर इज अ स्पेस दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन अ कंपनी दैट gave me much more than just my money. I wanted to work with leaders जिनसे मैं सीख सकूं, जिनसे मैं इंस्पिरेशन ले सकूं and not learn the wrong things, not learn how to manipulate or just to be authoritative or use your power, to somebody else's disadvantage. और उससे भी बढ़िया बात है कि अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए काम कर रहे हो, सो एलजीबीटी प्लस इज अगेन दे आर माइनॉरिटीज। और नॉर्मल वर्क स्पेसेस में आप यू कांट रियली रेज a voice. There are so many implications. This is a community that has been sort of sidetracked by the entire society for many years, generations for that matter. And abhi career is something jahan pe they can, once they start building their career, they will get a ground to work on, right? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं because of their orientation, because of who they are, उनके families से वो लोग अलग रहते हैं, society उनको discard करती है, but if they can get that welcomeness, acceptance and celebration at the workplace, it can really help them grow, right? वो कुछ सच में आगे जाके कुछ कर सकते हैं, and I believe that is something we all deserve. Just because you are someone who's a minority, आपके against कुछ भेदभाव तो नहीं होना चाहिए. Right. That's very inspiring, actually. Um, let's start from beginning. Sonali, you have said that you were an introvert and then you became a speaker. ये दोनों बिल्कुल opposite चीज है. How did this happen? Thank you. ये question तो what do I say? It's become a life story. तो I really was an introvert, और ऐसा है कि I'm an ambivert, I'm not an extrovert. लोगों को लगता होगा कि ऐसा है कि ये तो बहुत बात करती है, लोगों के साथ घुलती मिलती है, बट अंदर से आपको पता ना आप कौन हो। तो मुझे तो अभी भी लगता है मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ। आई एम अ बिट शाई, मुझे डर लगता है, बट वो डर अभी चेहरे पे दिखता नहीं है। I have masked it well, but I'm also nervous and I get, goosebumps or whatever, cold feet. I think throughout my school, I was always this very silent kid. The kind जो लोग आके आपको आपसे एडवाइस लेंगे, ज्ञानी टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, कि हाँ ये सोनाली है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके आप बोल सकते हो मैं सोनाली के घर जा रही हूँ या आई एम गोइंग टू दैट प्लेस एंड पेरेंट्स वुड बी ओके विद इट, क्योंकि दिस इज अ गुड इन्फ्लुएंस किड, इट्स अ गुड नाइस काइंड किड, तो Yeah. प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो आई यूज्ड टू बी दैट नाइस किड। Another problem with that was कि the problem with that was कि I was never really vocal about my needs. तो मुझे लगता था कि आई हैव मेड सो मेनी फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स मुझे जानते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे दे फील आई कैन बेनिफिट और आई कैन बिकम अ लीडर, आई कैन रिप्रेजेंट माई स्कूल इन सर्टन प्लेसेस, वो मेरा नाम देंगे। बट ऐसा हुआ कि आई जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग, बिकॉज स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, आप थोड़ी ना सबको उस हिसाब से देखते हो।
you are only, I would say you are only highlighted when you highlight yourself, right? So Mm. when I didn't highlight myself, or when I didn't talk about myself to others, why will they talk about me? And I Yeah. lost a lot of opportunities because you get to really experience and you get to build your skills in school. So I remember एक very monumental core memory होता है ना, आपका दिमाग में रह जाता है. एक दिन ऐसा था, हाई स्कूल में, आई वाज इन 11th ग्रेड, वी हैड अ ह्यूज ग्रुप, 12-15 बच्चों का ग्रुप, हमारा टीनेजर्स का ग्रुप, एंड वी वर गोइंग टू समबडीज हाउस फॉर अ बर्थडे पार्टी सुबह सुबह. एंड हम लोग पहुंचे, उसको सरप्राइज दिया, सब वी आर ऑल एंजॉयिंग, हैविंग फन. एंड आफ्टर 1 आवर, जिसके घर में हम लोग गए थे, जिसको बर्थडे का सरप्राइज देने, ही लुक्स एट मी, इज लाइक, सोनाली तू भी है क्या यहाँ पे? मुझे तो पता ही नहीं था. Hmm. सो इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 12-15 ऑल्सो, वो मेरे दोस्त थे, ही आई वॉज इनविजिबल. एंड दैट वॉज रियली अलार्मिंग टू मी. आई वॉज लाइक, अगर ये पर्सनल लाइफ में ऐसा हो रहा है, दोस्तों को भी जैसा हो रहा है, दुनिया वाले तो मुझे देखेंगे ही नहीं. And I'm a very average person right now. Now I'm like the topper of the class. Now I come from a business family, political family. None of these I have. ये मेरा advantages नहीं है कहीं से भी. और आई डोंट थिंक आई एम एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, कि मुझे अपने खूबसूरती पे ही लोग मेस्मराइज हो जाएंगे और मुझे भाव देंगे. तो मुझे लगा कि एटलीस्ट एक चीज तो आई कैन डू, आई कैन बिकम अ बेटर पर्सन, एंड आई कैन मे बी बिकम अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट, जिनके अराउंड लोगों को रहना पसंद है. आई कैन बिकम दैट लाइकेबल फिगर. और होता नहीं कि जब आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, यू लुक एट दिस वेरी कूल किड्स, आपको लगता है यार, Hmm. दे एंटर द रूम, एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू देम. आई वांटेड टू बी देम. मुझे था कि वो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो वो बनने के लिए आपको खुद पे काफी काम करना पड़ेगा. यू हैव टू हैव अ वेरी इम्प्रेशनेबल पर्सनालिटी, एंड यू हैव टू रियली मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स. तो धीरे धीरे करके आई अंडरस्टूड कि, और कोई भी आप जॉब में जाते हो, Hmm. शायद ही ऐसा कोई जॉब होगा जहाँ पे आप लोगों से बात नहीं करते हो या लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते हो. आप मशीन से तो नहीं कर सकते, राइट? तो सोशल स्किल्स तो चाहिए होगा. एंड इवन इफ यू आर डूइंग, बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग अ सेल्स पर्सन, हर चीज में यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल. Yeah. और आपका आर्टिकुलेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और आपने रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड किया है आपके कस्टमर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, टीम के साथ. वो आउट एंड बियॉन्ड जाके आपके लिए काम करेंगे, बिकॉज वी ऑल्सो डू इट फॉर पीपल वी लाइक. Yeah. So I said, why don't I be that person? क्योंकि ऐसा तो नहीं, I'm trying to manipulate them. I'm just be like, देखो ये मेरा स्किल है, ये मेरा काम है, हेल्प कर दो करने के लिए, right? Hmm. So if I'm likable, then if it works, it works. तो वो चीज चेंज हुआ, एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू गेट इनटू दिस होल ट्रेनिंग स्पीकिंग स्पेस. यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया मैंने, बस खुद के लिए, कि मेरा इंग्लिश बेटर हो जाए, कैमरा शाईनेस चला जाए, एक 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 थॉट प्रोसेस को इजीली आर्टिकुलेट करना आए, स्क्रिप्ट से पढ़ूं या एम आई मोर लियोना नेचुरल. सो आई अंडरस्टूड दैट थिंग्स, एंड देन पीपल स्टार्ट टू कनेक्ट. सो कॉलेजेस में दे यूज्ड टू कॉल मी, they still call me, or they used to call me for webinars. जोश टॉक से इनविटेशन आया, एंड धीरे धीरे अंडरस्टूड कि यार मुझे ना वन टू वन बात करने में थोड़ी दिक्कत है, मुझे वन टू मेनी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई लाइक मोर पीपल इन द रूम. So Hmm. that gave me a high. I'm like, the more people there are in the room, the more the energy, and the more I feel accomplished. क्योंकि वो जो बच्चा था पहले, जो स्कूल में था, जिसको लोग इनविजिबल देखते थे, अभी वो बच्चा स्टेज पे खड़ा है और उसकी बात सब सुन रहे हैं. So Hmm. I am making that kid proud. So every time I go and speak and talk to people, I think that was a monumental thing. Hmm. I think it's so important for us कि हम लोग पीछे देखे कि what the child wanted when we were at that stage. Because even I was an introvert, like काफी relatable story है starting का. And even people talk, मेरे को बोलते हैं you're always talking in the videos, how can you be an introvert? So and one very very common thing जो हम लोग सुनते हैं, यार तुमको बोलना मना नहीं है, तुम भी बोल सकते हो. Like when you sit in a group of extrovert people and everyone's talking, they will be like, why are you not talking? Nobody's saying you not to talk. Like, it's such a common thing I hear with other people also who are introverts in a group. So I would really like you to, especially for introverts, कुछ अभी से टिप्स दो, लाइक इफ समवन्स इन स्कूल और इन कॉलेज, या अभी से वो लोग अपने आप को, बिकॉज इवन इंट्रोवर्ट्स हैव सो मच टू से टू दिस वर्ल्ड, but because of the shyness and all that they cannot. So please give some tips for them. लवली. सो कृतिका, मेरा तो दिमाग में हमेशा ऐसा ही आता है कि एक इंट्रोवर्ट को ना लगता है कि इंट्रोवर्ट बनना एक गलती है. मुझे ऐसा लगता था, आई एम एन इंट्रोवर्ट, ये कोई प्रॉब्लम है.
मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना है, ये कोई प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्व करना है, या ये मेरे में कोई डिसएडवांटेज है, इट्स अ खामी जो भी बोलते हैं उसको, ये नहीं है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि काफी सारे लोग जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, सोशल एनिमल्स होते हैं, दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल, बट हम्म, हम में एनर्जी ऑलरेडी रहती है। एक तो बात वो है, तो वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ बीइंग अलोन, वी आर नॉट स्केर्ड टू स्पेंड टाइम विद आवर ओन सेल्फ, जो बहुत सारे लोग क्लेम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। we actually enjoy alone. वी एंजॉय आवर टाइम, वी Yeah, वो मी टाइम, आवर स्पेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट yeah, होता है, yeah, राइट। yeah. और बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो आसपास हमेशा उनके लोग रहने चाहिए, दे नीड पीपल हम्म, अराउंड, हमको वो नहीं चाहिए, वो एडवांटेज है। सेकंड, वी आर वेरी गुड लिसनर्स। बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे लोग आके कन्फाइड करते हैं, उनको चीजें बताते हैं, तो आपने उनको कंफर्टेबल फील कराया, आपने उनको वैलिडेटेड फील कराया, और क्योंकि आप सुन रहे हो, उनको भी आप काम कर रहे हो, यू आर समबडी सेफ स्पेस। एंड फॉर अ लॉट ऑफ इंट्रोवर्ट्स यू आर मल्टीपल पीपल सेफ स्पेस, राइट। एक इंट्रोवर्ट जो होता है, या जो भी थोड़ा सा शाय या कम थोड़े से बोलते हैं, जो भी है, लेबल तो नहीं डालेंगे खैर, तो काफी दफा उनके पेरेंट्स उनसे आके बात करेंगे, फ्रेंड्स बात करेंगे, कजिन्स बात करेंगे, राइट। सो यू आर दैट सेफ स्पेस दैट ऑल ऑफ अस नीड। हमको एक इंसान चाहिए जो हमारी बात सुने, ना कि हम्म, ज्ञान देना शुरू हो जाए। एंड ऑल्सो इंट्रोवर्ट्स आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स, मैंने खुद देखा है। तो लोगों की परख हमें बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम्म, हम ना चुपचाप से देखते हैं, लोगों को स्टडी करते हैं, और हम जब लोगों से एक्चुअली बात करना शुरू करते हैं, वी नो व्हाट टू टॉक, बिकॉज वी आर गुड ऑब्जर्वर्स। ऑल्सो हम्म, बिकॉज वी डोंट टॉक सो मच, हमारी बातों का भी वैल्यू होता है, करेक्ट। सो दीज आर ऑल गुड थिंग्स जो याद रखनी चाहिए, कि ऐसे इंट्रोवर्ट होना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं, बड़ा बहुत बड़ी एडवांटेज है। अब आपको ये सोचना है कि ठीक है, मैं इंट्रोवर्ट तो हूँ, बट कैन आई बिकम अ बिट मोर सोशल, राइट, कैन आई बिकम मे बी एन एम्बीवर्ट, या मैं थोड़ा सोशल स्किल्स अपने हम्म, आप में लाऊं। देन व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज, बहुत सिंपल सी बात है, आप पहले तो लोगों से बात करना शुरू करो, और यू अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स, कि यू नो यू हैव टू ब्रेक द आइस। पहला 10 सेकंड का जो कन्वर्सेशन होता है, दैट इज द बेस्ट थिंग। उधर आपने सही तरीके का बात कर लिया, तो यू गॉट देयर अटेंशन। कैसे हम्म, करोगे? वेरी सिंपल, राइट, सबको पता ही होगा जो भी सुन रहे हैं, बट स्टार्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट। किसी को भी जाके आप हाई बोलोगे, कोई स्ट्रेंजर होगा, आप एंड आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। सो इफ यू आर सिटिंग इन अ कॉफी शॉप, यू लुक एट अ पर्सन हु इज रीडिंग अ बुक, लुक एट दैट बुक, व्हाट दे आर रीडिंग, लुक एट देयर अटायर, लुक एट देयर टैटूज, लुक एट देयर हेयर स्टाइल, एनीथिंग दैट स्टैंड्स आउट, कुछ ना कुछ तो होगा जो इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसे रैंडमली तो आपका अटेंशन उसने लिया नहीं होगा। सो जो भी होगा आप उसको हाईलाइट करो, जेन्युइनली उसको कॉम्प्लीमेंट करो। Hi, I just want to come and say that I really like the book you're reading. Are you into books? I really want, do you think it's a good read? Do you recommend me to read? And then it starts, क्योंकि आप ऐसी चीजों के बारे में उससे बात करो जो उसको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें बात करने। अब वो खुद ही बात करेगा। ऐसा कोई हाल ही में कोई होगा इंसान जिसने अपना टैटू कराया होगा, आप उसको पूछोगे क्या स्टोरी है, और वो बोलता नहीं होगा। हाँ, वो तो और बताना तो आप, चाहता है. हाँ, वो 5 मिनट तक बात करेगा उससे, और वो इतना हम्म, खुश हो जाएगा क्योंकि आपने ऐसा चीज पूछा उसके बारे में जिसके उसका सेंटिमेंटल वैल्यू है उसमें। सो यू हम्म. आर मेकिंग देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आप तो बस क्वेश्चन But पूछ रहे हो। but honestly, Sonali, because I can feel what introverts feel. Actually, just thinking of this make me like, ये कैसे होगा? कैसे जाके मैं एक अननोन आदमी को इस तरह से, although we know कि ऐसे करना है, but ऐसा लगता है कि बहुत गट्स चाहिए हम लोग के लिए, ये करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए. यार आई टेल यू, अभी रिसेंटली मैंने किया है, और कभी होता है ना, आप आउट ऑफ प्रैक्टिस चले जाते हो अगर आप नहीं करते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आजकल सिटीज में ना अलग अलग इवेंट्स होते हैं, हर सिटी में आप बस यू नॉट जस्ट डूइंग क्लब हॉपिंग, Yeah, yeah. अब डिफरेंट स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं, या म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, फूड फेस्टिवल्स होते हैं, पेंटिंग, बहुत कुछ है. कुछ Yeah. बहुत सारा कुछ होता है। तो आप पहले उसको शॉर्टलिस्ट करो, कौन सा इवेंट में आपको अच्छा लग रहा है। जैसे Okay. बैंगलोर में देयर आर कम्युनिटीज हु ओनली प्ले बोर्ड गेम्स, Oh. उनको कुछ लेना देना नहीं, वो जस्ट कनेक्ट करेंगे हफ्ते में या महीने में एक बार मिलेंगे, बस एक दूसरे के साथ बोर्ड गेम खेलने के लिए, दे आर पैशनेट अबाउट बोर्ड गेम्स। Okay. आपकी सिटी में भी कुछ ना कुछ होगा ऐसे, और शॉर्टलिस्ट करो जो आपको पसंद है। और जब आप जाओ इस इवेंट पे, आप किसी फ्रेंड को ना लेके जाओ, बिकॉज Hmm. हमेशा हम जब कुछ ऐसे करते हैं, सोशल इवेंट पे जाते हैं, हम अपने एक दोस्त को लेके जाते हैं। आप Hmm. उसमें आपको लगता है ये आपका एडवांटेज है क्योंकि दोस्त है तो हमको ऑकवर्ड नहीं फील होगा, बट द प्रॉब्लम इज कि वो दोस्त शायद आपको जज नहीं कर रहा है, बट इन योर माइंड आप सोच रहे हो ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैंने जाके बात कर लिया तो Hmm. पीयर प्रेशर आप खुद डाल रहे हो। अब आप जब इवेंट पे पहुंच गए, अब आप 1 घंटा तो पूरा चुप नहीं बैठ सकते, या तो Hmm. कोई आपको अप्रोच करेगा या आप किसी को अप्रोच कर ही लोगे।
So the basic fact here is you are putting yourself in that environment where you have to perform. करेक्ट. अगर नॉन स्विमर को आपने धक्का मार दिया पूल में, मारना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मार दिया, वो ऐसे डूब थोड़ा ना जाएगा, हाथ पैर तो चलाएगा, कुछ तो Yeah. करेगा सर्वाइवल के Yeah. लिए. Yeah. तो ये भी एक सर्वाइवल ही है. आपने Come out of your comfort zone and करेक्ट, take baby put steps. yourself there and do something that will interest you. अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप पेंटिंग के बारे में बात कर सकते हो, और वहां के लोगों को भी पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको पता है ये सारे ऐसे लोग हैं who you vibe with the same passion. तो उतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा बात करना. नहीं, आप ऐसा नहीं है. जनरली क्या होता है, हम स्ट्रेंजर से बात करते हैं, पहला होता है कि मैं इससे क्या बात करूं, मे बी दे विल थिंक आई एम बोरिंग, मेरे को क्रीपी तो नहीं समझेगा, तो एवरीथिंग लाइक दैट इज गेटिंग एलिमिनेटेड. और ऐसा है कि आप दोस्त को लेके गए तो आपको उसके सामने भी एक अपने इंप्रेशन बना के रखना है, वो भी आप निकाल रहे हो ना, क्योंकि दोस्त कोई तो है नहीं. यू कैन बी एनीवन यू वांट, एंड नोबडी नोज यू आर एन इंट्रोवर्ट. किसी को थोड़ी ना पता है आपको डर लग रहा है, छुपा लो, थोड़ा सा एक्टिंग कर लो, कॉन्फिडेंटली ऐसे सोचो आप कोई और हो, आपके सर्कल में ऐसा कोई होगा जो बड़ा कॉन्फिडेंट होगा, राइट. सो यू थिंक दैट टुडे यू आर प्लेइंग दैट पर्सन्स रोल अपने माइंड में, राइट, एंड यू जस्ट डू अ रोल प्ले. जाके हाय बोल के तो देखो, एक आध बार देखो, इट विल बी अ गेम चेंजर और लाइफ चेंजर. मेरे लिए तो ऐसा ही है. आई सो विश कि ये आज जो अभी जो कन्वर्सेशन हुआ है, ये मेरे को कोई 15 साल पहले ये कन्वर्सेशन कोई मेरे साथ करता, माय लाइफ वुड हैव बीन सो डिफरेंट. एनीवे, इट ऑल सब कुछ ठीक ही हो गया इन द एंड. बट या डेफिनेटली ऐसा अगर अभी जो सुन रहे हैं उसमें से आई एम श्योर कि ये कन्वर्सेशन विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर द लिसनर्स हु आर गोइंग थ्रू दिस राइट नाउ. Okay. Sonali, you also talk about self-improvement, productivity, and all that. So, do you set goals? I'll be very honest. I do set goals, but I am not a person who micromanages my goals. मतलब I am not a person जो 1 ईयर को 6 महीने में, फिर उसको 3 महीने में, फिर उसको हफ्तों में, फिर उसको दिनों में, फिर उसको घंटों में, वो स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम नहीं किया. Because it makes me feel I'm not doing anything. It also makes me feel like कोई output नहीं आ रहा है. Okay. So what I do, I make a high level goal, or it's at the back of my mind. And I feel like कि वहां पहुंचने के लिए मुझे सिंपल भाषा में क्या करना पड़ेगा. मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी है या मुझे ये स्किल्स गेन करने हैं. आई मेक अ मतलब 5 का लिस्ट बना लेते हैं कि नेक्स्ट महीने में मुझे ये 3-4 चीजें करनी है, एंड आई जस्ट कीप दैट इन माइंड, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा गोल मुझे ओवरवेल्म करता है. Now, I know this because I've studied my pattern, right? And if it overwhelms me, that I feel lazy to actually even run after it. मुझे लगे इतना बड़ा गोल है, ये तो होगा ही नहीं मुझसे अचीव, तो भागते ही नहीं इसके पीछे. तो मैंने क्या कर लिया, I started to study what works for me. तो मेरे लिए क्या काम करता है. I remember there was a time when I used to take random courses. होता है जैसे लोग बुक्स कलेक्ट करते हैं, कुछ पढ़ते नहीं है. मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, मैंने कोई पढ़ा नहीं है ना. या आप वीडियोस को वॉच लेटर पे डालते रखते हो, लेकिन आप जाके उसको देखते नहीं है. या तो आप एक दूसरे को रील्स भेजते हो, लेकिन कोई एक दूसरे को रील्स नहीं देख रहा नहीं है. ऐसा करके कोर्सेज का भी एक जमाना था. आई एम श्योर थोड़ा थोड़ा है भी अभी. जब आप कोर्सेज लेते रह रहे हो, you are feeling the sense of achievement because you are taking that course, but you are not doing it through and through. बीच में ही वो कट हो जा रहा है. So for me, I understood कि unless that course is directly helping me do my current work better, that is not relevant to me. वो कोर्स डायरेक्टली मुझे आज के काम में हेल्प करना चाहिए, या तो वो पढ़ के मैं किसी और को पढ़ाऊं. तो अगर मेरा कोई सेशन आ रहा है और मुझे उस सेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, या इफ आई एम एंटरिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री जहां मैंने काम नहीं किया है, आई स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द कोर्स, बिकॉज वो डायरेक्टली वो कोर्स मुझे हेल्प करेगा आज का काम करने में. आई डू ऑल दिस. और ये होता गया है कि क्योंकि आई अंडरस्टूड कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, और क्यों पसंद और नापसंद है, और इसको चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए. आई नो दैट आई थिंक लेफ्ट ब्रेन होता है ना, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन. आई एम लेफ्ट ब्रेन. मैं राइट ब्रेन नहीं हूं. मैं लॉजिकल, एनालिटिकल, डेटा ड्रिवन नहीं हूं. बट आई हैव टू वर्क विद पीपल हु आर लॉजिकल, एनालिटिकल, डेटा ड्रिवन, हु आर राइट ब्रेन. सो हाउ कैन आई मीट देम मिडवे, क्योंकि वो बहुत नंबर्स बात करेंगे तो मुझे नहीं समझ आएगा, और मैं बहुत क्रिएटिव बात करूंगी तो उनको नहीं समझ आएगा. राइट. तो देन आई स्टडी दोज पीपल कि उनके लिए हाउ कैन आई मेक थिंग्स सिंपल, सो हम एक टीम में काम कर सकते हैं.
So मेरे लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैज ऑलवेज बिन हाउ कैन आई मेक माई वर्ल्ड सिंपलर एंड हाउ कैन आई मेक योर वर्ल्ड सिंपलर. तभी आप मुझे पसंद करोगे, तभी आप मेरे साथ काम करना चाहोगे, तभी मुझे भी काम करने में मजा आएगा. क्यों मैं कॉम्प्लिकेट करूँ चीजों को. So that has been the thing. Very well said, Sonali. What are your non-negotiables for every day? Oh, good question. Yeah, every day in terms of work or in terms of just Habit? habits. Yeah. Oh, nice. Okay, non-negotiables, personal, professional, I'll share. काफी टाइम ऐसा होता है कि I open my eyes and I open my laptop. I'm not a very big fan of doing that. और I start checking my calendar सुबह उठते ही. और वो ना बहुत टाइम मेरा दिन खराब कर चुका है बिकॉज मुझे लगता है इतना कुछ करने को है. लेट मी स्टार्ट माई डे अर्ली एंड देन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. आई एम नॉट ईटिंग ऑन टाइम. आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. आई एम नॉट डूइंग एनी मी टाइम. तो आई ट्राई एंड पुश लिटिल बिट. अगर मुझे 10 बजे लॉग इन करना है तो आई लॉग इन 9:30. थोड़ा हेड स्टार्ट मिलेगा बट आई नॉट लॉग इन एट 7 or 8. So I try and maintain that routine a bit. Or I also want to spend time with my family. तो होता है कि everybody is busy. So maybe breakfast is a time sometimes we get to spend. थोड़ा सा 10 मिनट का ही विंडो रहता है जहाँ पे we are actually able to talk to each other without any distraction. So I like that. I also like sometimes I would get up and work out. Walk कर लो या कुछ कर लो. तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी सबको बनना है, फिट सबको बनना है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं हो पाता. So can I incorporate that in my daily routine? So if I'm talking on the phone, I'll walk around. Agar, if I have a lot of meetings to take, I'll club it all in the first half of the day, or for the rest of the day I'm free. Agar if I have to really study something or research something, then I'll block my entire calendar ताकि कोई meeting ही ना book कर पाए, ताकि मैं एकदम focused काम करूँ. I started to paint again, so I got a gift. मंडाला आर्ट पेंटिंग का एक बुक है. So कभी मुझे लगता है बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है या चीजें हो रही है, so I start painting. And it requires some concentration, तो मेरा mind overthink नहीं कर रहा है. I have certain friends, so उनको call करके थोड़ा rant कर लेते हैं, vent out कर लेते हैं. और मेरे वर्क स्पेस में भी I have built good connections where they can call me and I can call them. So I know that there are people. So I try and keep my head free as I can. If there's something that upset me, I don't let it be there. क्योंकि वो ना अंदर ही पलता रहेगा और मुझे फ्रस्ट्रेट करेगा, मुझे एंगर करेगा और मुझे उस माइंडसेट में रहना ही नहीं है. आई वॉन्ट टू बी इन अ वेरी गुड हैप्पी जोन. ताकि ऐसे ही मतलब आप क्यों स्ट्रेसफुल रहना चाहते हो, है ना. थोड़ा मेहनत करना पड़ता है खुश रहने के लिए भी. सो आई वॉन्ट टू डू दैट मेहनत, राइट. सो और आई ट्राई टू लॉग ऑफ एट 6. लॉग ऑफ टाइम है, उसके बाद आई डोंट वांट टू डू एनी मोर वर्क. हमारा कल्चर भी ऐसा है दैट वी डोंट एनकरेज एनीबडी टू वर्क पास्ट दोज आवर्स. समटाइम्स हो जाता है, बट अगर आप लॉग ऑफ कर लिया, आई वांट टू स्पेंड एटलीस्ट एन आवर टू माई सेल्फ. समटाइम्स मैं कुछ भी ना करूं, ऐसे लेटू रहूं एंड आई एम जस्ट डूइंग स्क्रोलिंग ऑन माय फोन एंड माय मॉम इज लाइक, व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू कैन डू समथिंग एल्स. तो आई एम लाइक, बट आई लाइक डूइंग दिस. दिस इज लेजीनेस या डूइंग नथिंग इज ऑल्सो डूइंग समथिंग, है ना. वो शाहरुख खान ने एक बार बोला था, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. मुझे काफी टाइम उस टाइम वो फील होता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं कमाल कर रही हूँ. सो आई डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट ऑल इन ऑल आई डोंट हैव अ वेरी बिग टू डू लिस्ट ऑल्सो. ऐसा नहीं कि 10 मतलब 15-20 चीजें हो करने को देख के ही डर लगे. योर ईमेल्स कीप ऑन फिलिंग. सो आई नो कि इफ एनीथिंग कैन बी पुश टू द नेक्स्ट डे, आई विल पुश इट. और कोई चीज आप किसी का हेल्प लेके कर सकते हो तो आई आस्क फॉर दैट हेल्प. कभी कभी आपको बोरिंग लगता है बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम, सो आई कॉल अप अ कलीग एंड बी लाइक, क्या हम कॉल पे रह के एक साथ काम कर सकते हैं. सो आई फील कनेक्टेड. एंड सो मैंने अपने लिए छोटी छोटी चीजें खोज के रखी है जो मुझे हेल्प करता है, इन एवरीडे लाइफ. आई विल एनकरेज कि आप भी करो. जरूरी नहीं है आपके लिए सब यही सब काम करे, बट एटलीस्ट यू कैन फाइंड आउट यूनिक वेज दैट वर्क फॉर यू एंड इट डजंट हैव टू मेक सेंस टू एनीवन. आपके लिए काम करे तो काम करे, किसी को बताना भी नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से करो. Totally agree with this. Sonali, you also talk about DEI. Please elaborate. So, DEI basically stands for Diversity, Equity and Inclusion. Okay. तो एकदम सिंपल वे में बोला जाए कि आप एक वर्क स्पेस में काम करते हो, आप एक सोसाइटी में रहते हो, वहां पे हर इंसान सेम नहीं होता. जैसे 5 उंगलियां अलग होती है, वैसे लोग भी अलग अलग होते हैं.
और आप जब एक काम के स्पेस में आते हो, कई दफा आपको देखने में मिलता है कि कुछ फेवरिटिज्म होता है या कुछ बायसनेस होता है, और अगर आप माइनॉरिटी हो तो आपको शायद कॉर्नर किया जाता है। सो डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन ये बोलता है कि एक वर्क स्पेस में डाइवर्स ह्यूमन बींग्स होते हैं, राइट? वहां पे देर आर मेन, देर आर वुमेन, देर आर पीपल ऑफ अदर ओरिएंटेशंस, यू नो, देर आर ट्रांस पीपल, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, जो भी है। There are people with disabilities, and there are different age groups, different cultural backgrounds. So ये सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो हम किसी एक को फेवर नहीं करेंगे। कैन वी वर्क मेकिंग एन कल्चर जहां पे सब इक्वल हो और सब एक साथ एज अ टीम काम करें? तो वो आप टीम कैसे काम कर सकते हो? इफ आई एम अ वुमन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, सिमिलरली वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकते, तो हमको शेयर करना पड़ेगा एक दूसरे का नॉलेज। We have to learn about each other. Similarly, in my space, people who are heterosexual, so people who are straight, they don't know LGBT plus होना क्या होता है। कई दफा उनको लगता है ये डिजीज है, ये गलत है, ये हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम उनको ये बताते हैं, उनका मिथ ब्रेक करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, ताकि आप सामने वाले को एक्सेप्ट करो और ताकि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करो। तो ये होता है जहाँ पे कोई भी होता काम है। आज के डेट में भी इतना इतना स्टिग्मा है अभी भी? एक्चुअली है, मतलब इट इज चेंजिंग, बट कई दफा आपको लगेगा तो होना तो नहीं चाहिए, बट है। आई मीन आई हर्ड फ्रॉम पीपल जो अभी भी मुझे पूछते हैं ये नॉर्मल है क्या? फिर पूछेंगे कि सोनाली हम क्यों बात करें, ये सब ना पर्सनल लाइफ की बातें हैं, तुम अपने लाइफ में जो भी बनो, स्ट्रेट हो, गे हो, लेस्बियन हो, हम क्यों बात करें इसके बारे में, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब काम करने आते हो, राइट, आप 9 to 5 कर रहे हो, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑफलाइन काम कर रहे हो, क्या आप अपने कलीग के साथ सिर्फ काम के बारे में बातें कर रहे हो? नहीं ना। आप कॉफी पे जा रहे हो, आप वॉक्स पे जा रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो, वीकेंड को क्या किया, फैमिली कैसी है, पर्सनल लाइफ की बातें होती है। पर्सनल लाइफ की बातें होती है। तो ये सारी चीजें तो आपका, इट्स पार्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट यू आर ब्रिंगिंग। तो एक एलजीबीटी इंसान जो होता है, उनको ऑलरेडी डर लगा रहता है, यार इसको पता चल गया तो क्या होगा। दे विल मे बी, यू नो, मैं और आप एक ऑफिस में काम कर रहे जज हैं, कुछ साल करेंगे। से काम कर रहे हैं, है ना? आप शायद जानने बात कि आई एम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, आप शायद मुझसे दोस्ती तोड़ दो, तो मैं कैसे काम करूँ आपसे? शायद सब लोग मुझे कॉर्नर कर दे, और ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, तो वो और डरते हैं। तो सपोज करो कि हम लोग एक बात करते हैं कि आई एम आस्किंग यू कि आपका वीकेंड का प्लान क्या है, आपने क्या किया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बोलने के लिए, आप बोलोगे हाँ मैं आई वॉज विथ माई हस्बैंड, आई वॉज विथ माई वाइफ, आई वॉज माई पार्टनर, जो भी है। बट मेरे लिए मुझे प्रॉब्लम होगा ये बोलने के लिए, मुझे लगेगा आप जज करोगे, आप मुझे कॉर्नर करोगे, सबको पता चल जाएगा, सब हंसेंगे मुझ पे, सब मुझे नाम बुलाएंगे, मेरा मैनेजर मुझे डिस्क्रिमिनेट करेगा, शायद मेरा लीडरशिप मुझे निकाल दे। शायद डायरेक्टली ना बोले कि आपको इस वजह से निकाल रहे हैं, लेकिन आपको कॉर्नर कर करके आपको ऐसा एनवायरमेंट बना दे, आप खुद ही काम छोड़ दो। तो मैं क्यों बोलूं? तो द प्रॉब्लम विद दिस इज कि आप जब इतना कुछ सोच रहे हो, एक सवाल हाउ वाज योर वीकेंड ये सोच के, तो फिर आप कैसे उस एनर्जी को ला रहे हो? वो एनर्जी तो सारा चला गया ना। हर एक कॉन्वर्सेशन के साथ दैट एनर्जी इज गेटिंग ड्रेन्ड। तो आप काम पे क्या लगा रहे हो फिर? आप हर साइड ऑफ द पर्सनैलिटी इज कमिंग टू योर वर्क प्लेस, व्हाई शुड यू नॉट ब्रिंग दैट साइड? और ऐसा नहीं है कि यू नो ऐसा स्टिग्मा है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर मर्द से क्या हमको डर लगेगा? Not all men are like that, na? So, in the same context, not all gay All men people are like will that. or be on you. लोगों को डर लगता है कि यार ये तो गे निकला, मैं तो हट जाऊंगा इससे, ये तो मेरे पे लाइन मत मारना। अरे क्यों भाई, क्यों लाइन मारे? हम सारे स्ट्रेट पीपल एक दूसरे पे लाइन मारते हैं क्या? No, right? We have we have our natural inclination towards someone, है कि नहीं? तो जैसे कि और भी एक चीज है, जैसे लोग बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, औरतों को बराबरी का हक मिलना चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मेन आर टॉकिंग अबाउट इट। तो इफ यू आर फाइटिंग फॉर women rights, if you're fighting for equality, does that make you a girl? No, you're still a man. So if you're talking about LGBT plus inclusion, equality, does that make you gay? Or does that make you part of the community? No. अगर आप डिसेबल लोग जो होते हैं, आप उनको हेल्प कर रहे हो या आप उनके लिए लाइफ इजी कर रहे हो, डज दैट मेक यू डिसेबल? नो, है कि नहीं? सो दीज आर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। और लोग सोचते हैं कि ये ना ऐसे हम बात नहीं करेंगे ओपनली, क्योंकि वी हैव अ कंट्री दैट डजंट टॉक सो ओपनली अबाउट
anything related to love, romance, sex, and anything else, which is non-work. Yeah. But we need to talk about it, right? Mm. Because this is an everyday thing. और बहुत लोगों को पता नहीं है बिकॉज वो अवेयर नहीं थे. बहुत सारे लोग आर अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर एक्चुअली नॉट रियली स्ट्रेट, है ना. दे आर नॉट रियली ब्लैक एंड व्हाइट. जेंडर इज नॉट रियली ब्लैक एंड व्हाइट. सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज नॉट रियली ब्लैक एंड व्हाइट, एंड दैट्स फाइन. हमारे कल्चर में तो पहले से ही था ये. पीपल वर ऑलवेज देयर. हम लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया है. जस्ट लाइक विमेन्स राइट, हम लोगों ने वी नेवर गिव विमेन द राइट अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स. We are giving, so they are excelling. In the same way, LGBT plus community was closeted क्योंकि वो जैसे ही ओपन होते थे उनको हम अलग कर देते थे. तो वो क्यों हमसे आके ओपनली बात करेंगे, बट वो डर डर के भी क्यों जिए. सो दैट इज द कॉन्वर्सेशन. ओके. वाओ. कितना सारा बात मेरे को पता ही नहीं था, लाइक कि इतना अभी भी मेरे को लगता है इट्स लाइक इसमें बात क्या करना है सबको पता ही है, इट्स नॉर्मल थिंग, बट इट इज अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट. नॉट एवरीबडी इज अवेयर एंड एवरीबडी इज यू नो समझते नहीं है सब लोग. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट इट. द मोर वी टॉक अबाउट इट बिकम्स नॉर्मल, मोर नॉर्मल. Absolutely. Yes, I agree. Yeah. So when you take these sessions, let's say somebody who's listening right now is in school or in college, and they are afraid to come out right now. So especially with parents, कि parents को ये बात हम लोग कैसे बोलेंगे, so do you have any tips for them? डेफिनेटली. पहली बात, अगर आप सुन रहे हो, आप क्लोजेटेड हो, प्लीज डरना मत. ठीक है. इट्स आई नो कि द मोमेंट यू थिंक यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, आप खुद को ना नापसंद करने लग जाते हो. you start hating yourself because you think that society will hate you. You think you are letting down your parents. You think you will lose your friends. ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट. लोगों को थोड़ा टाइम दो, और दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आप गे हो, लेस्बियन हो, जो भी हो आप, ठीक है, वो तो आपका एक पार्ट है ना. जैसे कोई भी चीज हो, जैसे आपको मतलब जैसे आपका रहन सहन, जैसे बात करते हो, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर ओनली वन पार्ट ऑफ यू. सिमिलरली दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ यू, इट इज नॉट ऑल ऑफ यू. तो उसको उतना ज्यादा गहराइयों से मत देखो, राइट. डोंट पुट इट ऑन अ पेडेस्टल. दैट्स नंबर वन. सेकेंड, अगर आपको पेरेंट्स का गेज करना है तो टेक ऑल प्रिकॉशंस. तो आई वुड सजेस्ट कि आप धीरे धीरे उनको सेंसिटाइज करो. कैसे करोगे? देयर आर लॉट ऑफ गुड मूवीज इज अ ग्रेट फैमिली थिंग टू डू. आप पुराने मूवीज में मत जाओ. जैसे आप कपूर एंड सॉरी क्या बोलते हो, दोस्ताना देख लो, या आप राजा हिंदुस्तानी देख लो. दे यूज टू पोर्ट्रे एलजीबीटी प्लस कैरेक्टर्स इन अ वेरी नेगेटिव एंड कॉमिकल लाइट. उसको आप मत लो. चीजें आर चेंजिंग. So you pick movies like Kapoor and Sons, you pick movies like Badhai 2. There is the many series, like series है, क्या बोलते हैं उसको, Made in Heaven है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा है. और आजकल तो बहुत सारे वेब सीरीज में भी वो लोग LGBT प्लस कैरेक्टर्स डाल रहे हैं to make it a part of everyday conversation. बहुत सारे एड्स है. तो आप उनको ना बातों बातों में वो मूवी सजेस्ट करो, या आप साथ में बैठ के देखो और आप देखो कि वो उनका क्या रिएक्शन होता है. और पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स, हो सकता है उनका रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव निकले, तो अब धीरे धीरे उनको बताओ कि नहीं, ये कोई गलत बात नहीं है, राइट. बट यू नीड टू बी नॉलेजेबल इनफ, बिकॉज वो आपको पूछेंगे ये गलत कैसे नहीं है, ये क्या बात हुआ, राइट. आई नो देयर आर पेरेंट्स और adults from a different generation who are still uncomfortable seeing two people intimate on the screen. Yeah. और स्पेशली अगर हम लोग आसपास बच्चे होंगे, वो लोग और अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. तो उनके लिए ये समझना मुश्किल है. इवन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि पेरेंट्स के लिए स्पेशली अगर एक जनरेशन और ऊपर जाओ, इंटरकास्ट मैरिज भी अब जाके वो लोग थोड़े कंफर्टेबल होने लगे हैं. सो दिस इज अ ह्यूज थिंग फॉर देम. करेक्ट. तो और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार अब हम एलजीबीटी प्लस है, हमको ये पता चल गया, वी आर प्राउड ऑफ इट, वी आर अवेयर, अब हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. या हमारे पेरेंट्स हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स वन ट्रेन ऑफ थॉट. बट अनदर ट्रेन ऑफ थॉट इज कि आपको खुद को एक्सेप्ट करने में इतने सारे साल लग गए, है ना. आप खुद को एक्सेप्ट करने में, खुद को समझने में आपने इतने साल लगा दिए. आपके पेरेंट्स आपको ओवरनाइट कैसे समझेंगे? आपको तो उनको समझाना पड़ेगा ना. जैसे लोग आपने जैसे बोले इंटरकास्ट मैरिज हो जाए, लव मैरिज हो जाए, अगर आप बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, आपको करियर बनाना है, बिजनेस नहीं करना है,
वो चीज आपको उनको समझाना पड़ेगा। आप जोश में आगे होश नहीं खो सकते। मुझे ऐसा लग रहा है पेशेंस की बहुत जरूरत है। एंड टॉक टू देम फ्रॉम अ वेरी न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आप बात करो ऐसे, अभी मैरिज इक्वालिटी के बारे में केस चल रहा है, आप उनके बारे में बात करो। देयर आर लॉट ऑफ वर्डिक्स 377 के बारे में बात करो। जून आ रहा है, प्राइड मंथ आ रहा है, आप प्राइड मंथ के बारे में बातें करो, करंट अफेयर्स के बारे में बात करो, तो उनका वहां पे ध्यान जाएगा। कोई एड्स आ रहा है, कोई कोई कैंपेन कर रहा है। आई रिमेम्बर दुती चंद इज देयर, राइट? शी इज एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। वो आई थी, आई थिंक लास्ट सीजन झलक दिखला जा में फॉर 2-3 एपिसोड शी वाज देयर एंड शी इज अ वुमन। उनका जो पार्टनर था वो भी एक लेडी थी। जनरली हर कपल का एक मैन एंड वुमन होता है। शी वाज देयर एंड शी ओपनली सेड दैट शी इज लेस्बियन, उनकी गर्लफ्रेंड है, और वो आई है ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया इन अ डांस शो विद अ फीमेल पार्टनर। उनकी कोरियोग्राफर वाज अ फीमेल। तो ये सब एवरीडे थिंग्स है। ये हम घर पे बैठ के देखते हैं, डांस शो देखते हैं, रियलिटी टेलीविजन देखते हैं, उसमें से एक कैरेक्टर अगर ऐसा है और आपको पता है, आप वो मिलके देखो। तो आप ये बताओ उनको कि उनके लेस्बियन बनने से उनके काम पे किसी ने इफेक्ट नहीं पड़ा। शी स्टिल एन ओलंपिक मेडलिस्ट, राइट? शी स्टिल डूइंग हर वर्क एंड शी इज मेकिंग इंडिया प्राउड। तो क्या प्रॉब्लम है अगर वो किसी और को चाहती है या उनको अट्रैक्शन है किसी और की तरफ? ये कुछ अननेचुरल थोड़ी ना है। तो धीरे धीरे आप करो, बट आप, होता है हम थोड़े भावुक हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझते नहीं है। मुझे याद है, आई वुड ऑल्सो गेट अ लिटिल बिट। और हमारे पेरेंट्स का टर्मिनोलॉजी भी थोड़ा अलग है। मुझे याद है मेरे घर पे भी अरे ये है क्या यार, ये सब चीजें हम भी बोलते थे, है कि नहीं? जब हमारे में उतना ये नहीं था, नॉलेज नहीं था। अवेयरनेस नहीं अब था। हम, हमारे पास अवेयरनेस है तो हम तो नहीं बन सकते ऐसे। मेरे को पता है 9 out of 10 पीपल, अगर कोई लड़का थोड़ा सा भी फेमिनिन उसका हैंड जेस्चर हो, हम उसको गे बोलेंगे, हम उसको बुली करेंगे। वो हमारा ही दोस्त होगा तब भी करेंगे, है कि नहीं? तो अगर ऐसे हम करते हैं यार जेस्चर छोड़ो, इफ somebody doesn't has a girlfriend तो बोलते थे तुम्हारा गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, तुम गे हो क्या, इतना हाँ सा ये बात पे भी। या है ना, लड़कियों के छोटे बालों में उनको टॉम्बॉय टॉम्बॉय बोलेंगे। हाँ हाँ हमको, तुमको मिला होगा, मुझे भी मिला हाँ हाँ हाँ। है ना? और हम लोग ने उसको उस टाइम जस्टिफाई किया है, हम्म बट वो गलत था। इफ टीजिंग था, इनसेंसिटिव कमेंट था, जो अभी धीरे धीरे अवेयरनेस में आ रहे हैं। बट हमारे मम्मी पापा तो उस जमाने में ही अटके हैं ना, तो उनको हम्म अपग्रेड करना, उनको नॉलेज देना आपका काम है, राइट? तो आप धीरे धीरे करो, आर्टिकल शेयर करो, कॉफी पे बातें करो, एवरीडे सिचुएशन में आप एक चीज डालो। क्रिकेट के बारे में बात करते करते डालो, टॉक अबाउट विमेन्स क्रिकेट। विमेन्स क्रिकेट में देर आर मेनी प्लेयर्स हु आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हु हैव मैरिड ईच अदर। यूएस के फुटबॉल टीम में है ऐसे लोग। तो आप फिगर आउट करो आपके मम्मी पापा का कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, और उस हर इंडस्ट्री में देर आर पीपल। टॉक टू देम अबाउट सच पीपल सो दे अंडरस्टैंड कि ये कोई ऑफ बीट चीज नहीं है। और इंडिया में रिप्रेजेंटेशन भी है। देर आर मेनी पीपल हु आर आउट, जो कंपनीज चला रहे हैं, जो लॉयर्स है, जो एवरीडे बिजनेस कर रहे हैं। आप उनके बारे में बात करो ताकि उनको वो इंटरेस्ट आए। आई फील कि वही है, हमको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इट कैन गेट अ बिट इमोशनली टैक्सिंग, बट आई थिंक कि हम, इट्स दीज आर थिंग्स व्हिच आर लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लाइक एनीथिंग नया तो नहीं है, पर उनके लिए वो चीज नया है। और देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना? हम ऐसे बाहर वालों को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन हमारे घर में कोई होगा तो हम नहीं मानेंगे, है ना? बहुत जन ऐसे ही है, और हम सब में थोड़ा थोड़ा यही क्वालिटी है। इट इज अ वेरी ह्यूमनिस्टिक थिंग। सो यू हैव टू बी रेडी टू फेस सर्टेन थिंग्स। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप थोड़ा पेशेंस से बात करो, आराम से बात करो, धीरे धीरे आप उनको वो चीज समझाओ, क्योंकि आपने इतने साल लगा लिए हैं। आप उनको क्रैश कोर्स तो नहीं देख सकते और बोल सकते हो कि आप अभी ग्रेजुएट बन जाओ, जो आप 4 साल में आपने इंजीनियरिंग करी है, लेकिन तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद देम एंड बी पेशेंट विद योर सेल्फ। तो आप ढूंढो, आपके दोस्त में कोई ना कोई होगा जो समझता होगा। अगर समझता भी नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको कॉर्नर तो ना करे। एंड आई एम श्योर दैट आफ्टर सर्टेन एज यू कैन गेज पीपल। थोड़ा थोड़ा आप गेज कर सकते हो कि उनका क्या व्यूज है। कम आउट टू देम, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम आप बिल्ड करो। गेट कनेक्टेड टू अदर पीपल इन द कम्युनिटी। सोशल मीडिया है, बहुत सारे ग्रुप्स है, या कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मीटअप्स होते हैं एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी का, आप जाओ वहां पे, जाके आप लोगों से बात करो, तो कि आपको ये फील हो कि आप अकेले नहीं हो, खुद को आइसोलेट नहीं करना है। यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है घर से, आपके सर्कल से, आपको लगता है आप गलत हो। वो चीज आप खुद में मत लाओ, राइट? जस्ट बी पेशेंट, इट विल वर्क आउट। आई मीन मैरिज इक्वालिटी के बारे में आज
कोर्ट में बात चल रही है। हम Hmm. बहुत आगे आए हैं और भी आगे जाएंगे। कंपनीज आर एक्चुअली विलिंग टू हायर। हम ओपनली काम कर रहे हैं लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा। Definitely. Uh, we also hear a lot about LGBT plus rights. हम्म। What are those rights? वेल ऑनेस्टली सेक्शन 377 है, एक सेक्शन था जो ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, क्योंकि ये पहले इंडिया में नहीं था। तो 1861 आई बिलीव वाज द ईयर व्हेन ब्रिटिश वाज स्टिल रूलिंग इंडिया एंड दे इंट्रोड्यूस्ड दिस which basically criminalized LGBT plus people. अगर आप हेटेरोसेक्सुअल नहीं हो, अगर आप स्ट्रेट नहीं हो और अगर आप LGBT प्लस हो तो आप एक क्रिमिनल हो। तो इट बिकेम अ क्रिमिनल ऑफेंस। 2018 में 377 को हटाया गया लीगल सिस्टम से, जहां पे दैट वाज वेरी मॉन्यूमेंटल थिंग, जहां पे अभी 377 नहीं है, which basically means that in India, being an LGBT plus person, dating other people, being with other people, or identifying as anyone other than a man or woman is fine, is legal, and there is no discrimination. तो ये एक चीज है जो बहुत सारे जन नहीं जानते क्या है। हम हमारे लिए डायरेक्टली तो कुछ होता नहीं है, तो हम क्यों सोचे। उसके साथ साथ देयर आर मेनी अदर लॉज। फॉर एग्जांपल देयर इज अ वर्डिक्ट जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि थर्ड जेंडर बोल के भी एक जेंडर है। तो जहाँ पे आप फॉर्म्स फिल करते हो मेल फीमेल अदर, that falls under it. Of course, that is not the right way to do it, because other मतलब आप उनको एकदम जनरल कास्ट में कर दिया आपने, but there's still something. Yeah. There is also specific laws जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मदद करते हैं। इट इज फॉर द पीपल, फॉर द ट्रांस कम्युनिटी, जहाँ पे दे आर प्रोटेक्टेड। स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट ना करो। और ट्रांस पीपल, हमको ऐसा लगता है कि ट्रांस पीपल आर पीपल जिन्होंने अपना जेंडर फुल तरीके से चेंज कर लिया है, ऐसा भी नहीं है। स्पेसिफिकली वहां पे बोला गया है कि इवन अगर आप एक ऐसे इंसान हो, ट्रांस पर्सन कौन होता है बेसिकली, हो कि आप जिस शरीर में, द बॉडी दैट यू आर बोर्न इन, यू डोंट आइडेंटिफाई विद दैट बॉडी। इन योर माइंड यू आर समवन एल्स, यू आर स्टक इन द रॉन्ग बॉडी। एंड इन योर माइंड इट डजंट मीन दैट आप ऑपोजिट जेंडर के हो। जेंडर भी मेल फीमेल नहीं है, बहुत सारे अलग जेंडर्स हैं। बट सिंप्लीफिकेशन में हम मेल फीमेल अगर पकड़ भी लेते हैं, इफ आई एम बोर्न इन अ फीमेल बॉडी, आई माइट आइडेंटिफाई इन माई माइंड एज अ मैन। बट जरूरी नहीं है कि मैं मेडिकल रूट लेके पूरा जेंडर चेंज कर लूं। हो सकता है द वे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ कैन बी डिफरेंट। कपड़े अलग पहनूं, मे बी मैं मेकअप पहनूं, मे बी मैं मेकअप ना पहनूं, बाल छोटे करा लूं, मे बी आई टॉक डिफरेंट, मे बी आई चेंज माई नेम। सो दीज आर ऑल पीपल हु आर ट्रांस। तो अगर आप खुद को ट्रांस आइडेंटिफाई करते हो, यू डोंट रियली नीड कि हाँ आपने चेंज किया है जेंडर बोल के ही आप ट्रांस हो। सो आई बिलीव कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉज इंडिया में है। अभी एक लॉ पास हुआ है जहाँ पे कंपनी शुड हैव न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम और अ थर्ड वॉशरूम फॉर पीपल हु जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू मेल और फीमेल, राइट। तो ऐसे लॉज आ रहे हैं एंड इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड विद इट। सो इवन फॉर अ पर्सन हु इज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, जो आप खुद को डिस्कवर कर रहे हो, आप बेसिक सी बात है, गूगल करो, देखो आपके लिए क्या लॉज है। सो यू फील एक्सेप्टेड। अगर आपका देश आपको बैकअप कर रहा है, आपके लिए लॉज रख रहा है, राइट, देयर इज, ऐसा तो नहीं है कि वो लॉ बोल रहा है, सिस्टम बोल रहा है, हम सुनेंगे नहीं आपकी कोई बात। इट हैज बिकम डीक्रिमिनलाइज्ड। 377 लॉज देयर, थर्ड जेंडर आ गया है, दे आर एक्सेप्टिंग इट एज द थर्ड जेंडर। ट्रांस राइट्स है, उसके साथ साथ थर्ड जेंडर वॉशरूम्स है या जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स है। बहुत सारे पॉलिसीज में चेंज हो रही है। बहुत सारे पॉलिसीज कंपनी ने बना के रखी है जहां पे जैसे पॉश होता है, राइट, इट्स ओनली फॉर वुमेन। लॉट ऑफ कंपनीज हैव मेड पॉश पॉलिसीज एट जेंडर न्यूट्रल, जहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर और योर सेक्सुअलिटी यू कैन स्टिल अवेल दैट पॉश। आपके साथ अगर कोई भी ज्यादती होती है, आप आके मैनेजमेंट को बता सकते हो, जरूरी है आप औरत ही हो। सो कंपनीज इंटरनली आर मेकिंग दीज चेंजेस। सो आपके लिए भी, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू आर नॉट लिमिटेड टू ओनली वर्क इन अ प्लेस जहां पे आपको छुप छुपा के आना पड़े। आप गूगल करो, देयर आर मेनी कंपनीज जहां पे LGBT प्लस कंपनीज है। कंपनीज छोड़ो, देयर आर रेस्टोरेंट्स जहां पे लिखा रहता है LGBT प्लस फ्रेंडली, आप वहां पे जाओ। देयर आर ब्रांड्स दैट आर LGBT प्लस फ्रेंडली, आप वहां से चीजें खरीदो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। हमको एज ए कम्युनिटी भी आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। सो यू डू दैट।
सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमको नहीं पता होता है कि हमारे सपोर्ट में भी लोग हैं. देर आर मेनी 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 पीपल, हमको एलाइज बोलते हैं उनको, जो आप सपोर्ट करते हो एलजीबीटी प्लस पर्सन को, लेकिन आप एलजीबीटी प्लस हो नहीं, जरूरी नहीं कि आप हो. तो देर आर मेनी एलाइज जो 377 के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया है, सिर्फ कम्युनिटी के लोगों ने नहीं फाइट किया है. तो Hmm. सपोर्ट पे काफी सारे लोग हैं, और यही लोग बदलाव ला रहे हैं. यू नीड टू गेट योर सेल्फ ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एजुकेटेड, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि आप कुछ गलत हो, कि Hmm. आपने कुछ गलती करी है. Okay. आई थिंक लिसनर्स को भी काफी अच्छा आइडिया हो गया है. एंड देयर इज ऑलवेज सो मच रिसोर्सेज वे यू कैन गो एंड चेक इन डिटेल में इफ एनीथिंग कहीं पे भी आपको डाउट्स है तो. सोनाली, यू ऑल्सो को फाउंडेड अ कंपनी कॉल्ड स्पीड क्लब. टेल अस अबाउट इट. It's been a while. I'm no more a part of it, but it was a really good journey. It was my first ever company, and I'm very deeply connected to the entire thing. हम लोग एक्चुअली बेसिकली जैसे वी नो ना कि ऐसे फिजिकल हेल्थ के लिए यू मे बी गो टू द जिम, यू शुड वर्क आउट. या. बट हम ऐसे सोचते हैं कि हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं. अब Hmm. मेंटल हेल्थ ऑल्सो इज अ टैबू टॉपिक. पागल है क्या, हम क्यों करें कुछ, है या. ना, या साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाए, थेरेपिस्ट के पास क्यों जाए. तो हम ये सोचते हैं कि जैसे अगर आप बीमार पड़ते हो आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन आप एवरीडे हेल्थ के लिए एक कोच के पास जाते हो. तो Hmm. हमारा ये थीम था कि एक कोई टीनेजर, उनका जो टीनेज इयर्स होता है, दैट इज द मोस्ट इम्प्रेशनेबल एज. आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, बहुत खराब आदतें भी आप पिकअप करते हो दोस्तों से, मीडिया से, लोगों से, और बहुत अच्छी आदतें भी पिकअप करते हो. डिपेंड करता है आपका आसपास एनवायरनमेंट क्या है. राइट. और उस टाइम पे आपको खुद के बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस भी होती है. जस्ट फॉर एग्जांपल सेक्सुअलिटी कैन बी वन ऑफ इट. पीपल डिस्कवर इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, Hmm. और दे डिस्कवर कि उनका नेचर कैसा है. मुझे था कि मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ, मुझे चेंज करना पड़ेगा. उनके स्किल्स, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक, सारी चीजें उस टाइम मोल्ड अप होती है. एंड एट द सेम टाइम आप थोड़े रेबेलियस नेचर में भी चले जाते हो. आप मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हो, टीचर्स की बात नहीं सुनते हो, आपको लगता है आपको सब पता है, आप दोस्तों के बारे में बात सुनते हो, एंड थिंग्स दैट यू नो इंटरनली आर रॉन्ग, बट यू आर ड्रॉन टू इट. तो आपके पास Hmm. वो समझ नहीं होती सही गलत में चूज करने का. तो वी थॉट कैन वी बिल्ड अ स्टार्टअप बेस्ड ऑन एन इमोशनल जिम, जहां पे आप अब एक ऐसे जिम में जाओ जहां पे आप अपने इमोशंस के बारे में बात करो, इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाओ. Hmm. राइट. तो वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ सेशंस फॉर टीनेजर्स, जहाँ पे एज अ कोच हम लोग जान आते थे उनके पास, जहाँ पे वी आर वी ब्रिंग द विजडम ऑफ अ पेरेंट एंड द नॉन जजमेंट ऑफ अ फ्रेंड. Friend. तो Hmm. कोच वो होता था. और मुझे याद है कि व्हेन आई वाज अ किड मुझे बहुत जरूरत था एक कोच का. मुझे पता नहीं था एक ऐसा इंसान हो जिससे मैं जाके कन्फाइड कर पाऊँ. तो हमारा जो स्टार्टअप था, इट वाज बेस्ड ऑन दैट आइडिया कि Hmm. कैन वी बिकम अ कोच, बिकॉज एवरी टीनेजर नीड्स वन, एंड कैन दे हैव समवन जिनके साथ वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस कर पाए. जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसको हम सीक्रेटली गूगल करते हैं, आप Hmm. अगर हमसे आके पूछ लो तो एटलीस्ट हम कुछ तो आपको बता पाएंगे, एंड वी कैन ऑल्सो गाइड यू लिटिल बिट, और एटलीस्ट टेल यू व्हाट टू डू इन सर्टेन एस्पेक्ट्स. Hmm. एटलीस्ट आप खुल के बात कर रहे हो तो आपको भी थोड़ा सा बेटर फील होगा, यू विल फील लाइटर. So I worked on that segment, which is also a very big passion project. Very nice. Is it available in all the cities या फिर अभी सिर्फ बैंगलोर में है? So it was हम लोग ने एक physical setup लिया था, बैंगलोर बेस्ड ही था, but we during COVID we ran it online. I think it's still running. I'm no more connected to the Okay. organization anymore. But आप Google कर सकते हो, it should still be running, and we used to do a lot of good work. So if you want to, please go ahead. Sonali, you are a life coach as well. So let's ask some life related questions. यार, If money and society didn't matter, what will Sonali be doing right now? ओके. तो यार ये लाइफ कोच ना बड़ा एक तो क्या बोलूं, कंट्रोवर्शियल टर्म है. मैं इससे थोड़ा दूर रहूंगी. बट ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत खुद के बारे में पढ़ा है, लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत किया है. आई वुड लाइक टू बेस ऑन दैट. मनी सोसाइटी नहीं मैटर करता तो आई वुड हैव टेकन अ लिटिल बिट मोर रिस्क्स. आई थिंक जहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में मैंने काम किया है, बट हर सेगमेंट में जाने से पहले मैंने बहुत सारा सोचा है. Hmm. और मेरे करियर ग्राफ को देख के लगता नहीं कि मैंने सोचा होगा. लोगों को लगता है इसने तो बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लिए होंगे, इतने कम फ्रेम ऑफ टाइम में इसने इतने सारे इंडस्ट्री में काम कर लिया है. बट मैंने बहुत सोचा.
बहुत रिसर्च किया, बहुत, और मेरा स्टार्टअप भी जो था, इट वाज सेल्फ फंडेड स्टार्टअप बाय माय को-फाउंडर, एंड आई रिस्क्ड माय करियर ग्राफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई यूज्ड टू वर्क समवेयर एल्स, उसको मैंने छोड़ा, क्लाइंट्स को छोड़ा, आई पुट एवरीथिंग आउट हियर, राइट। तो हम्म। उसमें मैंने काफी सोचा, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सारा एनर्जी मेरा वेस्ट हो गया होगा। तो अगर मनी या सोसाइटी डिडंट मैटर तो मैं तो सोचती नहीं, मुझे जो मन करना होता मैं करती। बट इट वुड हैव बीन अराउंड द सेम स्पेस। मुझे स्पीकिंग का बहुत शौक है, इतने सालों तक मैंने कुछ बोला नहीं है, तो अभी मुझे लग रहा है दुनिया में थोड़ी बातें सुने तो अच्छा लगेगा। और ऐसा भी है कि ट्रेनिंग का भी बहुत शौक है, क्योंकि बचपन में आई डेंट फाइंड द राइट टीचर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, हम्म। बट इन रियलिटी वो टीचर आपको आपकी तरीके से समझा नहीं पा रहा है या नहीं बढ़िया। पढ़ा नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट डील विद एकेडमिक्स, आई डील विद लाइफ स्किल्स, या सोसाइटल थिंग्स, या जो चीजें आपको सोचने में मजबूर करती है, सोशल स्किल्स। तो इसके लिए एक बढ़िया ट्रेनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्किल या जो भी है, आप कुछ भी अगर सीखोगे आज, ये आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा इन एवरीडे सिचुएशंस, मेक यू अ बेटर पर्सन, मेक यू अ बेटर प्रोफेशनल। तो एज अ ट्रेनर भी मुझे वो वाला स्किल इंटरेस्टिंग लगता है। तो हो सकता है इसमें भी मैंने थोड़ा और रिस्क लिया होता। रिस्क हम्म। तो मैंने लिया है, बट थोड़ा सा और लिया होता, शायद थोड़ी चीजें और थोड़ी जल्दी की होती। तो ओके। लाइक आपने अभी बोला कि आपने बहुत कुछ शुरू किया एंड यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन, लोगों को लगता है कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट स्पैन में बहुत कुछ कर लिया, बट यू रियली thought about it and then you took this these decisions. So if somebody is at a stage right now who like 9 to 5 में है but they want to shift, so do you have, मतलब when this decision should be taken, do you have any tips for them? आई हैव टू ट्रेन्स ऑफ थॉट। कुछ करना शुरू किया जहाँ पे बहुत बार होता है ना, आप एक ही इंसान की बातें सुनते हो, तो आपको लगता है वही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हम लोग हमारे पेरेंट्स की बातें सुनते थे एक टाइम पे, हमको लगता है पेरेंट्स ही सही है, वो गलत हो ही नहीं सकते। Hmm. धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं, हमको समझ आता है पेरेंट्स भी तो इंसान है, उनसे भी गलतियां हो ही जाती है, वो भी कई दफा बहुत गलत चीजें बोल देते हैं। और अगर हम जानते हैं वो गलत है, हम उनको फॉलो तो नहीं करेंगे, या हम उनको हाँ हाँ तो नहीं मिलाएंगे, राइट। वी रेबल और वी टेल देम कि इट्स नॉट राइट, ऐसा मत करो, क्योंकि हमें थोड़ी सी अलग तरीके का समझ है। सो इन Hmm. द सेम वे, देयर आर पीपल आई यूज्ड टू फॉलो, थिंग्स आई वुड बिलीव। अब मैंने ना थोड़ा काउंटर चीजें करना शुरू कर दिया। अगर इफ आई यूज्ड टू फॉलो समवन, आई नाउ गो एंड रीड पीपल हु डोंट लाइक देम, इन्फ्लुएंसर्स हो या थॉट लीडर्स हो, ताकि मुझे दोनों ट्रेन ऑफ थॉट समझ आए। क्योंकि Hmm. हम एक ही इंसान जैसे सेलिब्रिटीज को हम लोग गॉड लाइक बना लेते हैं, स्पोर्ट्स को हम लोग गॉड लाइक बना लेते हैं, लेकिन Hmm. अगर आप ये जानोगे कि देर आर पीपल हु डोंट लाइक देम ऑल्सो, उनका भी एक लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं होता है। तो आपको ये समझ आएगा कि देन यू ब्रिंग दैट पर्सन डाउन टू ह्यूमन लेवल, आप उनको वो ग्लोरीफाई नहीं करना शुरू करते। तो सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 to 5 जो है, या ऑन्टरप्रिनरशिप जो है, ये ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खींचा गया है, कि Hmm. अगर आप 9 to 5 कर रहे हो तो गलत है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना Hmm. चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप यू आर नॉट अ गुड एंटरप्रेन्योर, यू आर नॉट सक्सेसफुल, तो वापस चले जाओ अपने जॉब में। तो ये मुझे लगता है ना, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, करेक्ट। Hmm. और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि बहुत सारे यहाँ पे इफ्स एंड बट्स होंगे। आपका लक, आपका डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके हाथ में नहीं होता। टाइमिंग कई दफा सही नहीं होती है बहुत सारी चीजों की। हो सकता है आप जिस स्टेज में हो, उस स्टेज में आपके पास सही स्किल्स नहीं है एक बिजनेस चलाने के लिए। जोश Hmm. बहुत है, स्किल नहीं है, या आपके पास पैसे नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती है एक बिजनेस रन करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 to 5 छोड़ने के लिए आप जबरदस्ती बिजनेस में मत जाओ, या बिजनेस Hmm. नहीं करने के लिए 9 to 5 में मत आओ। दोनों का ही एक ब्यूटी है, दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स है। आपको ये समझना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। एंड मेरा हमेशा से रहेगा कि टेस्ट बोथ। Hmm. आप एक 9 to 5 कर रहे हो तो आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो। यू कैन, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑल्सो ओके विथ मून लाइटिंग। तो आप खुद का बिजनेस चलाओ, या आप और एक जगह पे नौकरी करो जहाँ पे वो इंडस्ट्री क्लैश नहीं हो रहा है, तो आप वहां का एक्सपीरियंस ले लो, है ना। फिर आप देखो कि दोनों में से आपको कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और Hmm. अगर आप आपको समझ भी आएगा नेचुरली, आप ज्यादा इंटरेस्ट लोगे उस चीज में। Hmm. फिर आप देखो कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कि आपके पास बैंक में पैसे है कि नहीं, लॉजिकली भी सोचना चाहिए, एकदम जोश में होश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से बात करो, एंड Hmm. टॉक टू द रेलेवेंट पीपल।
Yeah. और आपको शेफ बनना है, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं बात करोगे, है ना? अगर आपको सीए बनना है तो आप जाके कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई भी बिजनेसमैन से तो नहीं बात करोगे डायरेक्टली, राइट? आप उस रेलेवेंट इंसान से बात करोगे। और आजकल इंसान को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, Yeah. सोशल मीडिया पे जाओ, तो उस पर्टिकुलरली उस इंसान के साथ काम करो, आप वॉलेंटियर करो, आप इंटर्न बनो, आप किसी के असिस्टेंट बनो, आप शैडो करो लोगों को। और ये कोई एज की बात भी नहीं है, लाइक आई वुड स्टिल शैडो पीपल इफ आई वांट टू, Hmm. राइट? सो आई वुड से कि थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये करियर का मामला है। आई डोंट वांट कि आप जोश जोश में नौकरी छोड़ के घर पे बैठे रहो Hmm. और फिर बैंक में पैसे नहीं होंगे, तो इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, इट विल Yeah. अफेक्ट द योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। Hmm. और जितने भी हम बोले पैसे के बारे में, मनी इज इम्पोर्टेंट, Yes, we need absolutely. it, right? Yeah, So yeah. make a conscious decision, take Hmm. a calculative risk. Very interesting. Sonali, what inspires you? ओके, सो बहुत पहले आई हैड रेड दिस कोट, मुझे पता नहीं किसका कोट है, बट इट सेड दैट बी द पर्सन यू नीडेड व्हेन यू वर यंगर। Hmm. एंड आई थिंक वो कोट ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, बिकॉज नाउ आई लुक एट मी एंड आई लुक एट माई यंगर सेल्फ। तो उस यंगर सेल्फ को आज मैं जो हूँ, इस इंसान की जरूरत थी। I couldn't find that when I was young. So, but I can be that for other young people. Similarly, आज मैं जिस एज में हूँ, आज मुझे किसी और की जरूरत है। सो Hmm. बट व्हेन आई रीच दैट स्पेसिफिक एज, मेरे एज में जो लोग होंगे उनको मेरे ऐसा कोई जरूरत होगा, सो आई कैन देन हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो मुझे हमेशा कोई जूनियर रहता है या कोई ऐसा लगता है कि जिसको मैं हेल्प कर पाऊँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन देम। और मुझे लगता है लोगों को हेल्प करके आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ, इट्स अ वेरी सेल्फिश Hmm. थिंग टू डू। मुझे लगता है वो जो बच्चा था स्कूल में, उसको बड़ा प्राउड फील होता होगा मुझ पे। तो मैं ना हर चीज करती हूँ उसको प्राउड फील कराने के लिए, और उसके Hmm. बाद मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए। It's a very nice way to put. Um, okay. What skills do you want to learn? Like say in a year or two. वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, लाइक मैंने बोला ना, मैं ना बहुत लॉजिकल डेटा ड्रिवन नहीं हूँ, तो मैंने अपने आप में एक हाल फिलहाल में कुछ मंथ्स में देखा कि आई एम नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो इन टर्म्स Okay. ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माई फाइल्स। में बहुत क्रिएटिव लाइन में मैंने काम किया है, तो इन अ प्रॉपर कॉर्पोरेट सेटअप आई लैक अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे Hmm. फाइल्स अनऑर्गेनाइज्ड है, एक्सेल सही तरीके से करना नहीं आता, ईमेल्स में मुझे सही तरीके से ड्राफ्ट करना नहीं आता। मुझे लगता है मेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, बट मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली नहीं है। तो आई थिंक दीज आर ऑल वेरी कॉर्पोरेट स्किल्स जो मुझ में नहीं है, एंड आई रियली वांट टू डू दैट। कि अगर मैं एक ईमेल लिखूं तो बहुत ही अच्छा ईमेल हो, बहुत प्रोफेशनली रिटन ईमेल हो, या कोई भी छोटी छोटी चीजें जो ऑफिस की चीजों में काम रहता है, और मुझे ऐसे डर है कि मैं तो डेटा ड्रिवन नहीं हूँ, मैं तो क्रिएटिव हूँ, बट दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज नॉट टू लर्न, Hmm. राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई एम टॉकिंग टू समवन हु इज लॉजिकली ड्रिवन, आई Hmm. हैव टू टॉक टू हिम और देम अबाउट दैट पर्टिकुलर सेट। आई कांट टॉक क्रिएटिव, तो मुझे डेटा पे ही बात करना पड़ेगा उनसे, मुझे उनके साथ नंबर्स पे ही बात करना पड़ेगा। Yeah. तो आई हैव टू गेट यूज टू डूइंग ऑल दैट। तो मुझे लगता है कि कपल ऑफ मंथ्स और ईयर डाउन द लाइन आई शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू बी लाइक, हाँ यार, इफ आई हैव टू बी अ लेफ्ट ब्रेन पर्सन फॉर अ वाइल, आई कैन डू दैट। जैसे मैंने थोड़ा सा इधर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बीचों बीच मैंने थोड़ा जगह बना लिया, मुझे ऐसा लगता है लेफ्ट राइट में भी आई कैन स्क्वीज इन अ लिटिल बिट, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट करके मैं एक मिक्सचर लाऊं, ताकि Hmm. ऑफिस में भी ऐसा नहीं लगे कि यार सोनाली तो सिर्फ क्रिएटिव है, उसको ये करो तो उसके ऊपर और लोगों को काम करना पड़ेगा, राइट? So if Yeah. you feel like I'm bringing in a package, I think that is what thing I want. Hmm. Nice. Have you found your why? Huh, I don't know. I think my why fundamentally is that only the younger self one, but I think it also keeps evolving a bit. फिलहाल तो, and it also depends on what I'm doing. Like Hmm. currently, I remember last I used to work in finance. तो मेरा why था about financial literacy, about being financially independent. और currently मेरा why है about LGBT plus inclusion. तो Hmm. 2 साल बाद if I'm doing something else, मेरा why थोड़ा अलग हो जाए, फंडामेंटल लेवल पे जो यंग यंग वाला ही Hmm. रहेगा हमेशा। Nice. Um, okay. What worries you about the future?
Not being able to do enough. I have this very weird urge that I have very less time. और मैंने एक दो दोस्तों को ऐसे बोला, उन्होंने बोला ये क्या बातें है, ऐसा थोड़ा ना कोई सोचता है। पर मुझे हमेशा लगता है मेरे पास वक्त काफी कम है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। लाइक मुझे बहुत सारी जगह पे घूमना है, बहुत सारे लोगों से बातें करनी है, बहुत सारा अलग अलग चीजें सीखना है। तो आई एम ऑलवेज इन अ हरी टू कंप्लीट थिंग्स। सो आई फील कि ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और मेरी ख्वाहिशें पूरी ना हो। जितना भी हो सकता है, एटलीस्ट आई वुड लाइक टू बिलीव कि आई डिड माई बेस्ट। अगर मुझे 10 चीजें करनी थी, मैंने एटलीस्ट 8-9 तो कर ही लिया, एक आध छोड़ सकते हैं। So that is what worries me sometimes. आई थिंक मोस्ट एम्बिशियस पीपल हैव दिस थिंग कि उनको लगता है कि उनको बहुत कुछ करना है, पर शायद एनफ टाइम नहीं है सब कुछ करने के लिए। हाँ, और हर दिन एक नया आइडिया आता है, इस पे शुरू कर लेके यार, जो पहले चल रहा है उसको तो कंटिन्यू करो। I know. The multitasking is the thing, yeah. I don't know. आप multitasker हो क्या? नो, नॉट लाइक, नहीं, या बट जैसे ड्राइविंग इन पॉडकास्ट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। that's a different thing. बट या बट ऐसे नहीं हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। हाँ, Like, करेक्ट। वो चीज जो एकदम फोकस वर्क चाहिए, इट्स इम्पॉसिबल हाँ, फोकस वर्क में नहीं कर सकते, बट Yeah. मैं आई एम दैट पर्सन जो एक काम करते करते मुझे और एक चीज याद आती है, तो आई गो ऑन अ डिफरेंट टैब। देन धीरे धीरे आई कैम बैक टू दैट टैब अगेन, आई बी लाइक नहीं, मुझे ये कंप्लीट करके ही जाना है। जाना है, या वी हैव टू फोर्स आवरसेल्फ कि नहीं, Force पहले ये ourselves. तो कंप्लीट कर लो। एंड देन सडनली रात को याद आता है सोते टाइम पे, अरे I हाँ know. ये वो। आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप वेयर ओनली आई एम द मेंबर कॉल्ड आइडियाज। Oh, एंड same. आई हैव पिन्ड इट, आई सेंड ऑल दोस आइडियाज टू On देम। top. या ओ यस, पहले ना आई डोंट नो, ग्रुप मतलब कोई ग्रुप छोड़ दिया होगा, आप अकेले बच गए होंगे, उसमें आपने किया है नहीं ना। नहीं, मैंने खुद ही किया, मेरे हस्बैंड का नंबर पहले डाला था, फिर उनको डिलीट कर दिया। डिलीट कर दे। हाँ, अभी यू कैन सेंड इट टू योर सेल्फ ऑल्सो ना, ऑन यस, व्हाट्सएप यू कैन सेंड हाँ इट टू योर हाँ सेल्फ। हाँ मुझे हाँ। याद है ना, मेरा एक बहुत पुराना नंबर था, बहुत फनी स्टोरी, बहुत पुराना नंबर था। आई यूज्ड टू सेंड ऑल मैसेजेस टू दैट नंबर। फिर वो नंबर मैंने ना रिचार्ज कराना बंद कर दिया, और वो सिम शायद कुछ होके वो चल रिसाइकल होके किसी और के पास चला गया। ओके। एंड ना मुझे ना ब्लू टिक दिखने लग गया उसमें। ओह माय उस गॉड। बंदे ने कॉल करके मुझे बोला, ये क्या भेज रहे हो? आई एम सेंडिंग माई फ्लाइट टिकट्स, आई एम सेंडिंग आइटनरी, क्या है, आई एम सेंडिंग बजट्स। मतलब मैं कुछ उबर वाले को पे कर रही हूँ, वो लिख रही हूँ। तो बंदा या मुझे बोल रहा है, आप ना गलत इंसान को, क्या मुझे पता नहीं आप कौन हो, आप क्यों सेंड करो? मैंने बोला ये ना मेरा ना पुराना नंबर था, आप मुझे ब्लॉक कर दो। यहाँ पे बहुत सारा डेटा पहले है, आप मुझे ब्लॉक कर दो, मैं आपको ब्लॉक कर देती हूँ, अगर काम आएगा तो मैं कॉल कर लूंगी। उसने बोला हाँ, काम आएगा तो आप कॉल कर लीजिएगा। मैंने भी कहीं किसी पॉडकास्ट में इस आइडिया के बारे में सुना था, एंड देन आई हैव अ फुल कम्युनिटी, लाइक पॉडकास्ट आइडियाज का अलग ग्रुप बनाया हुआ है, यूट्यूब आइडियाज का अलग ग्रुप, एंड देन कंबाइंड इट एंड पुट इट इन अ कम्युनिटी। ओह वाओ, दैट्स यू इंटरेस्टिंग, कैन डू, आई डू दैट। मतलब हर टाइम नोट्स खोलना याद नहीं आता है, या फिर इतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना व्हाट्सएप रहता आई एग्री। है। यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। Lovely. I'll do that. Thank you so much. श्योर। वेयर डू यू डोंट माइंड वेटिंग? Uh, okay, so Bangalore has made me a very punctual person. I was not like that before. तो because there is a lot of traffic और आपको उबर ओला जो भी है आपको नहीं मिलता है, तो I like to not keep other people waiting. So I like to reach there early, और मुझे ना बड़ा एंग्जाइटी होता है जब मैं एकदम मीटिंग में मतलब एकदम वैसे पहुंचती हूँ, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स ऑल्सो। सो आई वॉन्ट टू रीच टू द प्लेस अर्ली, जहाँ पे आई गेट टू असेस द प्लेस, आई गेट वॉन्ट टू गेट कंफर्टेबल विथ इट। सारा इंट्रोवर्ट होने का थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब ये नुक्स है हमारे या होने का। या आपको अगर याद होगा, आपकी मीटिंग में भी मैंने 5 मिनट 10 मिनट पहले ज्वाइन किया था, या और ये वर्चुअल मीटिंग्स में भी लागू होता है। सो आई डोंट रियली लाइक माइंड वेटिंग इन दीज एस्पेक्ट्स। मुझे लगता है कि आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ विंडो टू काम माई सेल्फ डाउन, टू ब्रिंग माई बेस्ट सेल्फ टू यू। Okay. Last question, Sonali. One thing that you really wanted to do, but अभी तक वो काम करने का चांस नहीं मिला आपको? आई वॉन्ट टू ट्रैवल आउट ऑफ इंडिया। Okay. बहुत टाइम से ये रहा है। इनफैक्ट मैंने सोचा था हाई स्कूल के बाद मैं बाहर पढ़ने जाऊं, Hmm. थोड़ा थोड़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ था, और उस टाइम थोड़ी समझ आ गई थी कि ऐसे पेरेंट्स को लूट के तो नहीं जाना चाहिए, गलत बात है। Hmm. सो आई डिडंट परस्यू।
एंड फिर मुझे लगा कि मैं शायद आई डू अ वर्क दैट हेल्प्स मी गो आउटसाइड और टेक अप अ वर्क देयर, या मैं थोड़ा सा कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ भी, मतलब जो भी चीजें होती है आप रूट लेते हो बाहर जाने के लिए, आप मैंने ट्राई किया है या मैंने सोचा है उसके बारे में. बट आई एम वेरी श्योर दैट आई हैव फ्रेंड्स हु लिव आउटसाइड, बट मेरा वो सपना है या मेरा एम है कि मैं काम की वजह से स्पेसिफिकली बाहर जाऊं. Hmm. That I do such good work that either I'm invited to go, I'm fully sponsored to travel, and I go and I do some really good work. जहाँ पे I bring so much value to the table कि उनको लगे कि हमें वो ही चाहिए, हम हिंदुस्तान से उड़ा के उनको लाएंगे, but हमको वो ही चाहिए. So that is my next big thing. That's awesome and very inspiring. सोनाली, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड टू द लिसनर्स, आपको सोनाली का सारा सोशल प्रोफाइल्स एंड ऑल द लिंक्स विल बी अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन और डिटेल बॉक्स, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ ये पॉडकास्ट देख या सुन रहे हो. सोनाली, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. थैंक यू सो मच कृतिका, दिस वाज वंडरफुल. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे. आई होप आपके लिसनर्स को कुछ थोड़ा बहुत, आई होप मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दिया होगा, बट हमारे लोग आप थोड़ा बहुत कुछ चीजें आप लेके जाओ. Yes, it was a very fun conversation and very learning as well. Thank you थैंक यू so सो much, मच. Sonali.